Assalamu alaikum students. In this topic we are going to study about the senses in humans in a bit detail. How the human body receives sensory information such as sight, sound, smell, taste and touch, the five senses that we are going to study in detail. The first one is the physiology of vision. The organ that is responsible for vision is eye. हम आँख की मदद से देख सकते हैं. While looking at an object, light rays from that object are refracted and brought to a focus upon the retina. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लाइट जो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आती है हमारी आई में रिफ्लेक्ट हो जाती है और एक फोकस्ड इमेज रेटिना पर बन जाती है. The image falls on the retina in an inverted position and the energy in the visual spectrum is converted into electrical impulses by रोड्स एंड कॉन्स ऑफ द रेटिना. रेटिना हमें हमारे पास रोड्स और कॉन्स होते हैं जो इस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं. इम्पल्सेस फ्रॉम रोड्स एंड कॉन्स रीच द सेरेब्रल कॉर्टेक्स थ्रू द ऑप्टिक नर्व एंड द सेंसेशन ऑफ विजन इज प्रोड्यूस्ड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. फिर ये जो इम्पल्स रोड्स और कॉर्ड्स है थ्रू ऑप्टिक नर्व ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाता है जहाँ पर विजन प्रोड्यूस हो जाती है. The diagram will help you better understand. As you can see, there are three steps for the image to be produced on the retina. ये हमारे पास तीन स्टेप में होता है. Number one is the light entering eye triggers photochemical reaction in rods and cones and back of the retina. जो लाइट हमारे पास सेंटर होती है वो photochemical reaction जनरेट करती है जिसकी वजह से एक नर्व इम्पल्स बनता है. Chemical reaction in turn activates bipolar cell. जो chemical reaction जो हो रहा है उसकी वजह से bipolar cell activate हो जाते हैं. And the third and the last is the information is sent to visual cortex by thalamus. thalamus के थ्रू ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉर्टेक्स तक पहुंच जाती है. The second is the physiology of hearing जो हमारे पास ईयर के थ्रू होती है. Sound waves enter the outer ear and travel through a nerve passage called the ear canal which leads to eardrum. Outer ear से जो sound wave है वो enter होते हैं और ear canal के थ्रू eardrum तक पहुंचते हैं, वहाँ पे vibration cause करते हैं. The eardrum vibrates from the incoming sound waves and send these vibration to three tiny bones in the middle ear. These bones are called the malleus, incus and stapes. Sound wave eardrum पे vibration cause करती है. जो मज़ीद तीन bones attach होते हैं ईयर ड्रम के साथ मिडिल ईयर में, उन बोन्स के नाम है मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज. द बोन्स इन द मिडिल ईयर एम्पलीफाई और इंक्रीज द साउंड वाइब्रेशन एंड सेंड देम टू द कोचलिया, अ स्नेल शेप स्ट्रक्चर filled with fluid in the inner ear. फिर ये जो वाइब्रेशन है ये एम्पलीफाई होती है थ्रू दीज थ्री बोन्स जो कि फिर मज़ीद ट्रांसफ़र होती है कोचलिया को जो एक स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर है और उसके अंदर एक फ्लूइड होता है और ये इनर ईयर का पार्ट है. वंस द वाइब्रेशन कॉज द फ्लूइड इनसाइड द कोचलिया टू रिपल, a traveling wave forms along the basilar membrane. Hair cells called sensory cells sitting on the top of the basilar membrane ride the wave. फिर ये जो वाइब्रेशन है कोचलिया में ये एक इम्पल्स ओरिजिनेट करते हैं जो कि मज़ीद हेयर सेल के थ्रू आगे मूव करती है. एज द हेयर सेल्स मूव अप एंड डाउन, माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस बेंड. बेंडिंग cause pore like channels to open up. When that happens, chemical rush into the cells creating an electrical signal. The auditory nerve carries the electrical signal to the brain which turns it into a sound that we recognize and understand. जिस तरह ये हेयर सेल्स अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं तो वो एक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो बेंड हो जाते हैं जिसकी वजह से एक खास चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं. जिन चैनल्स की वजह से केमिकल्स रश इनटू द सेल, वो सेल के अंदर रश करना स्टार्ट करते हैं और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाता है. फिर ये ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाया जाता है जहाँ पर इस सिग्नल से साउंड बनता है और इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं और समझते हैं. You can see from the diagram, the pinna is in the outer ear and as well as the ear canal. The sound enters through the pinna into the ear canal and vibrates the eardrum. Then with the eardrum there are three bones, malleus, incus and stapes, which are in the middle ear, and these in turn vibrate the cochlea which has a fluid inside it and causes an electrical signal, and that is sent to the brain through auditory nerve. The third one is the physiology of smell जो हमारे पास नोज के थ्रू होती है. Each olfactory neuron has one odor receptor. Microscopic molecules released by substances around us, whether it's coffee, breathing or fine trees in a forest, stimulate these receptors. Once the neuron detect the molecule, they send messages to your brain which identifies the smell. नोज में हमारे पास olfactory nerve होती है, olfactory neuron होते हैं जिसके receptors नोज के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं और जो भी सब्सटेंस हमारे गिर्द प्रेजेंट है वो एक खास मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ये रिसेप्टर सेंस करते हैं और फिर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं जो कि फिर ब्रेन तक सेंड किया जाता है और स्मेल को हम आइडेंटिफाई करते हैं.
The fourth one is the physiology of taste. Taste is sensed by tongue. The three nerves associated with taste are the facial nerve. Taste में हमारे पास तीन किस्म की nerve होती है. Number one is facial nerve जो कि provide fibers to the anterior two-thirds of the tongue. The second one is the glossopharyngeal nerve which provides fiber to the posterior third of the tongue, and the last one is the vagus nerve which provides fibers to the epiglottis region. The sense of taste is mediated by taste receptor cells, which are bundled in clusters called taste buds. Taste receptor cells sample oral concentrations of large number of small molecules and report a sensation of taste to centers in the brain stem. हमारे पास जो receptors हैं इन नर्व के वो टंग में प्रेजेंट होते हैं और इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स होते हैं. एक ग्रुप बनाते हैं ये रिसेप्टर जिनको हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं. तो अलग अलग टेस्ट बर्ड अलग अलग टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि फिर उसकी सेंसेशन ब्रेन स्टेम तक प्रोवाइड करते हैं. यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम कि हाँ जो स्वीट और साल्टी है वो टिप ऑफ द टंग पर होता है, सोर ऑन द साइड्स ऑफ द टंग होता है और बिटर जो टेस्ट है वो ऑन द बैक ऑफ द टंग होता है. ऑल दो वेरिंग फ्रॉम ईच इंडिविजुअल द टंग हैज़ अबाउट 10,000 टेस्ट बर्ड्स. टंग में हमारे पास 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. पॉइंट टू नोट के मिडल ऑफ द टंग में कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं है, इसलिए मिडल ऑफ द टंग इज टेस्टलेस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ टच जो कि हमारे पास थ्रू स्किन होती है. स्किन में हमारे पास तरह तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टच को सेंस करते हैं और सेंस ऑफ टच इज़ कंट्रोल्ड बाय ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व एंडिंग्स एंड टच रिसेप्टर्स इन द स्किन नोन एज सोमेटोसेंसरी सिस्टम. और ये सोमेटोसेंसरी सिस्टम का पार्ट है. दिस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सेंसेशन वी फील. चाहे हम सर्दी महसूस कर रहे हैं, गर्मी महसूस कर रहे हैं, कोई स्मूथ या रफ प्रेशर महसूस कर रहे हैं, टिकलिंग महसूस कर रहे हैं, दर्द, पेन, खारिश, वाइब्रेशन, किसी भी किस्म की जो सेंसेशन है टच के थ्रू वो हमारे पास स्किन में वेरियस नर्व एंडिंग और रिसेप्टर होते हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है. सेंसरी न्यूरॉन्स इन योर स्किन सेंड इन्फॉर्मेशन टू द नेबरिंग न्यूरॉन व्हिच इन टर्न सेंड सिग्नल टू योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस दीज सिग्नल्स एंड सेंड्स रिस्पॉन्स सिग्नल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी थ्रू अ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन कॉल्ड अ मोटर न्यूरॉन. जो सेंसरी न्यूरॉन स्किन में प्रेजेंट होता है वो इन चीज़ों को महसूस करता है, चाहे वो टेम्परेचर है, ठंड है, गर्म है, कोई पॉइंटिंग चीज़ है, फिर वो ब्रेन तक सिग्नल प्रोवाइड करता है और ब्रेन फिर उसके रिस्पॉन्स में अकॉर्डिंगली थ्रू मोटर न्यूरॉन रिटर्न सिग्नल इफेक्टर को भेजता है. फॉर एग्जाम्पल आप किसी गर्म चीज़ को टच करें तो आपका हाथ फ़ौरन वहाँ से हट के आपकी आंखों के सामने आ जाता है. सो दिस इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ योर सेंसरी रिसेप्टर्स कि उन्होंने उस गर्म चीज़ को रिसीव किया, ब्रेन को सेंड किया और ब्रेन ने थ्रू मोटर न्यूरॉन भेजा कि भाई हाथ को कंट्रोल करे, डेंजर स्टिमुलस से दूर हो जाए. दैट्स द एंड ऑफ द टॉपिक. थैंक यू.